Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss again one of the most important topic of this chapter, that is chemiosmosis. So let's move to the classboard. An important long question. तो इस चैप्टर में शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटीपी की जो सिंथेसिस है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस के जरिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि आगे चलकर ये पूरा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा फुल टाइम मैकेनिज्म के साथ उसके। तो डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज हियर, द केमियोस्मोसिस। So first of all, I'm going to define what is chemiosmosis. So chemiosmosis, the process, as it is cis usually means the process like osmosis, like exocytosis, like endocytosis. So the process by which the ions and over here the protons means the hydrogen ions are transported across the semi-permeable membrane and here in this case the semi-permeable membrane is a thylakoid membrane or resulting in the formation of an electrochemical gradient. तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इसके नतीजे में बन जाता है. So this process is called chemiosmosis. Clear? Dear students, in photosynthesis, both in non-cyclic phosphorylation and cyclic phosphorylation the generation of ATP always follow chemiosmosis. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है एक डायग्राम के जरिए, जो कि आप भी बनाना सीखेंगे और साथ साथ मेरे साथ इसको ड्रॉ करना सीखिए प्लीज. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता दैट this is a plant here, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो मेजर साइट है दैट इज लीफ. So
लीफ का स्ट्रक्चर को हमने देखा था। And here are the guard cells, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं the chloroplast and the mesophyll cells. So this is a mesophyll cell containing chloroplast, और इसमें से हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से देखा। So chloroplast, double membrane bounded organelle, having thylakoids arranged in the form of grana connected by intergranum, and from this a single thylakoid. So how it looks like. So this is a single thylakoid I have drawn, और अब इस thylakoid को बड़े से ड्रॉ करूंगा मैं, ताकि हम इस केमियोस्मोसिस को समझ सकें। क्लियर? So this is plant level, this is a leaf level, this is organelle level, ये organ, and this is organelle, means the chloroplast, और chloroplast अभी हम डिटेल में गए। This is thylakoid, और अब इसकी मज़ीद डिटेल में हम जाने वाले हैं। So let's move. So this is a lipid bilayer membrane here, in which there is present the photosystem 1, then there is plastoquinone, and again there is cytochrome complex, and then there is plastocyanin, the electron transport chain, and then there is the photosystem 2, sorry, photosystem 1, the second photosystem, photosystem 2, photosystem 1, and then there is ferredoxin, and then NADP reductase, and finally there is an enzyme by the name of
ATP synthase. So all this has been embedded within the thylakoid membrane. Now I'm going to complete the diagram. This is a lipid bilayer. Clear? So these are the phospholipids. Clear? जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से. Chapter number 4, chapter number 2. So actually this is the thylakoid membrane. ये सारी मैंने आपको ड्रॉ की thylakoid membrane और इसके अंदर embedded है ये सारा structures. Clear? Means the electron transport chain. This is electron transport chain. This is electron transport chain. This is photosystem 2, photosystem 1, and ATP synthase. And this is actually, I have drawn the thylakoid. Clear? और thylakoid के बाहर ये क्या चीज़? This is stroma. Clear? तो इसका मतलब है ये सारा स्ट्रक्चर आप कंसिडर करें, ये क्लोरोप्लास्ट है, उसमें ये एक thylakoid पड़ा हुआ है और ये एक thylakoid की ये मेम्ब्रेन को डिटेल के साथ ड्रॉ किया गया और उसके बाहर ये सारा क्या है? This is stroma, the fluid, the dense fluid which surrounds these thylakoids, or and this one is the thylakoid membrane. यहाँ पर उसका डिटेल स्ट्रक्चर है. मतलब ये इसलिए कि ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक ही लिपिड बायलेयर है. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है. क्योंकि डबल स्ट्रक्चर तो उस क्लोरोप्लास्ट का है, तो उसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होकर इस तरह से वो फ्लैटेंड सैक बनाती है. ठीक है, दिस इज सो दिस होल इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. और आपको बताया था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी ये इनक्लोज करती है एक फ्लूइड को, फ्लूइड फिल्ड स्पेस को, दैट इज कॉल्ड एज, ये अंदर वाली जो जगह इसे कहते हैं, दिस इज थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस. इसे थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस भी कहते हैं, यानी थाइलाकॉइड की अंदर वाली स्पेस, या इसका एक और नाम था जीडी स्टूडेंट्स, क्या था? दैट इज लुमेन और ल्यूमेन. क्लियर हो गया? यहाँ तक ये सारी डायग्राम क्लियर होगी. मीन्स कि ये हम सारा क्लोरोप्लास्ट को देख रहे हैं. ये सारे, लेट्स सपोज कि हमारा पूरा बोर्ड जो है ये क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर ये सारा सराउंडिंग में क्या ये डेंस फ्लूइड है, दिस इज स्ट्रोमा, और ये एक थाइलाकॉइड है, ये उसकी मेम्ब्रेन और उसके अंदर ये स्पेस, द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस. यहाँ से देखिए प्लीज. सो दिस इज
thylakoid membrane, और ये अंदर क्या है इसके, thylakoid इंटीरियर स्पेस और ल्यूमन, और इसके बाहर क्या मौजूद है, स्ट्रोमा। तो इसी को ज़रा एनलार्ज करके दिखाया गया जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। So this is the direction of flow of electrons. Clear? Now I am going to mention. So this is photo system 2. This is photo system 2. और ये क्या है, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। और ये फिर क्या है, दिस इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सो दिस इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये फिर प्लास्टोसाइनिन आ गया, द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, और उसके बाद ये है जी फोटो सिस्टम 1 जो कि 700 वेवलेंथ वाला। क्लियर? और ये फेरिडॉक्सिन, एंड दिस इज NADP reductase एंजाइम। क्लियर? और ये जो आपको ऐसे खूबसूरत सा फानूस की तरह का दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द ATP सिंथेज, ये भी एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर हम रिएक्शंस को भी शो कर देते हैं। सो ओवर हियर द हाइड्रोजन प्लस NADP, it is converted into NADPH2। क्लियर? और इसी तरह से ये इसको कौन जो है वो यानी कि कौन इसमें हेल्प कर रहा है, NADP रिडक्टेज, ये एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये इनमें इनको कैटालाइज करवा रहा है। ऑल डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से एक दफ़ा देखिए प्लीज़। सो यहाँ पर पड़ रही है सूरज की रोशनी दोनों सिस्टम्स के ऊपर। सो दिस इज फोटोन। क्लियर? हमारा काम यहाँ पे, क्योंकि हमने बात की कि सूरज की रोशनी डुअल इन नेचर है, वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। तो पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटोन। तो फोटोन का यहाँ पर काम, इसी तरह से यहाँ पर भी फोटोन पड़ा। यहाँ पर फोटोलाइसिस हुई थी फोटो सिस्टम 2 पे। तो ये क्या हुआ था कि वाटर splits by using this photosystem 2 into 2 hydrogen ions plus electron plus we have got half molecular oxygen। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये पहले से मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ से जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, यहाँ से रिलीज कर दी जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। और फिर यहाँ पर जो लाइट पड़ी थी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, वो होल क्रिएट हुआ था फोटो सिस्टम 2 की क्लोरोफिल ए में, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के अंदर। तो वो ये इसको फिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन ये पास होंगे प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन इसको पास करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको पास कर रहा है प्लास्टोसाइनिन को, द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, फिर ये इसको पास कर रहा है फोटो सिस्टम 1 को। तो जो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था, होल क्रिएट हुआ था इलेक्ट्रॉन के फोटो एक्साइटमेंट के बाद, वो इसको फिल कर दिया जाएगा। फिर ये आगे चलाएगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ये किसको पास करेगा, इलेक्ट्रॉन्स टू द फेरिडॉक्सिन, द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिर इस्तेमाल करेगा NADP रिडक्टेज, और ये फिर NADP को इसको रिड्यूस करेगा इनटू NADPH2। क्लियर होगी यहाँ तक बात? और फिर यहाँ पर ये सारा तो मैकेनिज्म आपको पता है। अब इस मैकेनिज्म को ज़रा डिटेल से, ये सारी चीज़ें जो हमने पहले नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में डिटेल से पढ़ी थी।
अब डियर स्टूडेंट्स, केमियोस्मोसिस में क्या होने वाला है, लिसन। तो यहाँ पर फोटोलाइसिस हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, और यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं वो इस चेन पे चढ़ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ तक पहुँच गए। ये सारा काम आपने देख लिया। अब यहाँ पर थैलाक्वाइड की इंटीरियर जो सरफेस है, जो इंटीरियर स्पेस है, यानी कि लुमन, यहाँ पर फोटोलाइसिस होने की वजह से हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल फोटोलाइसिस हो रही है। तो लुमन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि इसका फायदा उठाएगा एटीपी सिंथेस। अब एटीपी सिंथेस क्या करेगा कि हाई कंसंट्रेशन, और बार स्ट्रोमा जो है इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, कंपैरेटिवली। यहाँ पर लुमन की बात करें तो ये क्या करेगा, एटीपी सिंथेस इसका फायदा उठाएगा और इनको पंप करेगा अंदर लुमन से बाहर स्ट्रोमा में। यहाँ से तो जब ये स्ट्रोमा के अंदर आ रहे हैं इस तरह से हाइड्रोजन आयंस, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। हाइड्रोजन में बाहर ज़्यादा थे, डिफ्यूज कर कर, और यहाँ से उनको इस विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इसको बाहर लाया गया। और यहाँ पर इसके पास मौजूद हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी मौजूद है, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मौजूद है। जब डाउन द कंसंट्रेशन ये मूव करेंगे, तो आपको बताया था कोई भी चीज़ जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है तो ये एनर्जी रिलीज करती है, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो जब एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी इस्तेमाल होगी इन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एटीपी। तो बनेगी एटीपी यहाँ पर, लेकिन कैसे बनी? By the process by which the ions, means the protons, are transported across the semi-permeable membrane, means the thylakoid membrane, resulting in the formation of electrochemical gradient. तो बाहर हाई अंदर लो। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये पंप तो हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। तो NADPH यहाँ पर बन चुका है, क्लियर? NADPH भी बन गया, ATP भी बन गया, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट थी पूरी। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, एटीपी और एटीपी बनती रहे, इसके लिए एक फिर ये केमियोस्मोसिस वाला मैकेनिज्म चलेगा। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनको पंप करवाया जाएगा, मूव करवाया जाएगा अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इनटू द इंटीरियर स्पेस। यहां से मूव करवाया जाएगा अंदर की तरफ इन हाइड्रोजन आयंस को इस मेम्ब्रेन के क्रॉस। ये बात जरा गौर से समझने वाली बात है, बस छोटी सी बात है, टेक्निकल बात है, इसको बस समझ लें, टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा। तो हाइड्रोजन आयन जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इस एटीपी सिंथेज एंजाइम सिंथेसिस से है। एटीपी सिंथेज इसलिए इसका नाम रखा कि ये जब डाउन द ग्रेडियंट मूव करवाएगा तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस्तेमाल करके और एटीपी बनवा लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बाहर स्ट्रोमा में भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ती रही तो अंदर कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, तो फिर इसको पंप करना बाहर की तरफ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उनको पंप करवा रहा है। तो इस मैकेनिज्म के लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या किया कि इन मेम्ब्रेन्स के अंदर रखे पंप्स, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन आयंस को कहां पे भेजना है, वापस। अंदर वाले साइड पे कंसंट्रेशन है हाई, बाहर वाली साइड पे कंसंट्रेशन है लो। तो जब कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, सो दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस, उसको एनर्जी चाहिए। आपने पढ़ा हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूजिंग और बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जब भी किसी चीज को पंप करवाना है लो से हाई की तरफ, अंदर हाई है बाहर लो है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद हैं पंप्स, यानी वो भी प्रोटीन चैनल्स होते हैं। पंप्स उनको कहा जाता है, हाइड्रोजन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो क्या करेंगे कि अब यहाँ से उनको अंदर मूव कराना है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये मूव कर रहे थे अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन, वो आपको याद है जी स्कीम। तो ऐसे ऐसे नीचे मूव कर रहे थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वो जब उनका वो साथ में लेवल मैंने मेंशन किया था, इसको दोबारा से वो चीज़ देखें अगर ये क्लैरिफाई नहीं है।
तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाते हैं तो दे विल रिलीज एनर्जी, दे विल एमिट एनर्जी। तो जब इस तरह से मूव कर रहे हैं हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी इस्तेमाल होगी यहाँ पर इनको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर भेजने के लिए। तो यहाँ पर बतदरीज क्या रहा, जानबूझकर इंटेंशनली अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा जाएगी ताकि अंदर कंसंट्रेशन हाई रहे, बाहर लो रहे, ताकि एटीपी की सिंथेसिस होती रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को यानी कि मेम्ब्रेन्स को कपल किया जा रहा है इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के साथ। यही केमियोस्मोसिस है, यही हम पढ़ते हैं आपस में। तो टॉपिक में देखें तो टॉपिक तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली आपने किस तरह से है, ये मैकेनिज्म देखा आपने किस तरह से है। तो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स हमने पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, रिडॉक्स है। ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखें ये रिडक्शन हो रही है, रिडक्टेज क्या कर रिडक्शन कर रहा है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता जा रहा है वो ऑक्सीडेशन होती जा रही है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस को कपल किया जाता है किसके साथ, एटीपी की फॉर्मेशन के साथ, बाय यूजिंग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, बाय यूजिंग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो मुसलसल ऐसा होता जा रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रखना जरूरी है, इस ताकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना रहे। अंदर हाई कंसंट्रेशन, बाहर लो कंसंट्रेशन, वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, तो एटीपी सिंथेस एडीपी और फास्फेट को मिलाकर एटीपी बनाता रहेगा। तो इनको फिर वापस भेजा जाएगा। कुछ हाइड्रोजन तो इस्तेमाल हो जाएगी यहाँ पर एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करने के लिए, बाकी को कहा जाएगा भाई वापस जाओ। वो खुद तो जाएगी नहीं क्योंकि अंदर हाई कंसंट्रेशन। सो ये अप हिल मूवमेंट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए उनको, और एनर्जी कहाँ से आनी है, बाय दिस प्रोसेस, कि जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे मूव कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग एनर्जी, वो एनर्जी इस्तेमाल होगी इनको अंदर भिजवाने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द डार्क रिएक्शंस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।